Hello, friends. Welcome to Health Talks, a doctor-driven podcast brought to you by HDFC Ergo General Insurance Company. I am your host Hitesh Pirani. I handle the health business for HDFC Ergo General Insurance. What I am going to talk to you today about is a health concern that concerns most of us in our country. I would be talking about two things. One is diabetes, second is hypertension. If I do a online research today, I believe diabetes and hypertension is the most found word. Almost 8 crore citizens in our country are having this ailment today, and this is diabetes of type 2. And I will cover in this discussion what is type 1, type 2. Also, further, if you research, there are almost 22 crore people in our country who have this ailment of hypertension, and only 12% out of these 22 crore people have this hypertension under control. Rest maybe, unfortunately, are not even aware about this condition. And we at HDFC Ergo General Insurance Company, as a customer-focused company, we believe that not only we should be providing health insurance solutions to the people, but we should also be creating awareness. We should be putting out all efforts to let people remain informed about their health, remaining alert about their health. And this episode of today is a step in that same direction. What we'll do today is we will talk to the expert who handles this subject on an ongoing basis, and she will answer all our queries. What I will try and do is raise questions and take answers in a way and manner that we are not talking in medical jargons. We are trying to make it as simple as possible, and to take this episode forward, I would want to introduce to all of you and welcome Dr. Hani Savla. She's a practicing doctor in Mumbai, and she brings along with her a wealth of experience on both these subjects, which we are today calling as silent killers. So, Dr. Hani, welcome to HDFC Ergo General Insurance. Thank you for sparing your time and helping us, spread this awareness about diabetes, about hypertension, and especially today's world when everything is available, through a mobile app in 5 minutes, in 10 minutes, all junk food which somehow we earlier used to not eat because we had to go and buy it. Today it is available, at a click of a button. In such a world, if this is the situation today that 8 crore people are suffering from diabetes and 22 crore people are suffering from hypertension, and I'm sure both are linked, with all this onslaught of mobile apps and various brands supplying these things at home delivery front, I am sure this is going to take a bigger proportion than what it is today. But I would want to start it on a very basic format in terms of understanding about both of these conditions or ailments or whatever we may want to say. So first of all, my first question would be how do you define diabetes, and how do you define what is diabetes type 1 and type 2? As I mentioned that the data says almost 8 crore people in India are suffering from diabetes type 2. So what is diabetes in layman language, and what is diabetes type 1 and type 2? Yeah. So first of all, a big namaste and thank you for inviting me here for this talk. So I really love the curiosity with which HDFC Ergo wants to actually prevent these diseases in their customers. So I will speak partially in Hindi and English. I think it would be very comfortable for both of us. So talking about diabetes and blood pressure, तो सबसे पहले आपने मुझे पूछा कि definition क्या है diabetes. तो डायबिटीज़ का सबसे पहले चीज़ हमको समझना है कि डायबिटीज़ इज़ इंक्रीज इन दी ब्लड ग्लूकोज और प्लाज्मा ग्लूकोज, जो होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. सो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज प्रोड्यूस करती है, और वो हार्मोन को अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में कहूँ ना, तो वो जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है. वो कंट्रोल करता है कि हमारे खाने में से कितना ग्लूकोज ब्लड में जाएगा. अगर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा ग्लूकोज लगेगा और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और जब हम नहीं कर रहे हैं तो इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो वो उतने ग्लूकोज को एंटर होने नहीं देगा. अब डायबिटीज़ में होता ऐसा है कि ये इंसुलिन जो है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन जो है, वो अपना काम ठीक से नहीं करता, जिसकी वजह से अनकंट्रोल वे में ब्लड शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज है, वो ब्लड में एंटर कर लेता है और ये लेवल्स बढ़ने लगते हैं
ब्लड के अंदर अनकंट्रोल्ड वे में, और उसको कहा जाता है डायबिटीज़। सो बेसिकली अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो जब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यानी कि खाली पेट जो 8 आवर्स फास्टिंग के पास बाद में जो ग्लूकोज लेवल्स करते हैं, अगर वो मोर देन 126 है, एज वेल एज 2 आवर्स आफ्टर मील का शुगर लेवल्स अगर वो मोर देन 200 है, तो हम इसको डायबिटीज़ कह सकते हैं। एक थर्ड पैरामीटर भी है इसका, जिसको हम कहते हैं एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको कैलकुलेट किया जाता है एज एन HbA1c। तो वो भी मोर देन 6.5% है, और ये तीनों पैरामीटर्स है, तो हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ के बीमारी हो गई है ऐसा बोल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, जिसकी जिज्ञासा बहुत लोगों को है। सो डिफरेंस क्या है अगर मुझे बेसिक आपको समझाना है, तो टाइप 1 वो बीमारी है, डायबिटीज़ का वो टाइप है जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो बिकॉज बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो अर्ली एज में ही इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहने लगता है और उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट या तो वो इनसफिशिएंट है या वो इनएफिशिएंट है, यानी कि उसकी मात्रा कम पड़ रही है, इसके लिए वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और उसका टारगेट बहुत बड़ा है इसके लिए। तो दैट्स हाउ डायबिटीज़ ऑकर्स एंड दैट्स हाउ वी डिवाइड टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। थैंक यू सो मच। एंड लगेगा तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बाय ईटिंग मैंगोज, लेस मैंगोज, मोर मैंगोज, विल माई डायबिटीज़ और somebody's diabetes shoot up or the sugar will shoot up? So very interesting question and I think appropriate for the season, but अभी आम का सीजन एक्चुअली खत्म भी होने आ रहा है, बट many patients ask me this. So मैंगो उन फ्रूट्स में आता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। उसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो मैंगोज खाने के बाद जो स्पाइक आता है आपके ब्लड के ग्लूकोज में, वो काफ़ी हाई आता है। तो इसके लिए मैंगो का कंजप्शन हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए। अभी हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मैंगो का सीजन इज़ लाइक अ फेस्टिवल। अगर हम मैंगो दिन में 3-4 बार नहीं खाएंगे तो इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग नॉट नॉर्मल। सो हमें ये हैबिट को चेंज करना है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे ऑक्यूपेशंस सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मॉडरेट क्वांटिटी में सीजनल फ्रूट कंज्यूम किया जा सकता है उन पेशेंट्स को भी जिनको डायबिटीज़ है, बट उसको बैलेंस किया जाता है, यानी कि उस दिन आप इस तरीके का कार्ब खाएंगे जो सीजनल फ्रूट से मिलेगा, फिर आप रोटी या राइस से जो कार्ब मिलता है वो नहीं लेंगे। एंड आप डेली कंज्यूम 2 times a day कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। यू कैन कंज्यूम इन मॉडरेशन once or twice a week इन स्मॉल क्वांटिटी। एंड एक्चुअली मैंगो में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जिसका भी बॉडी को ज़रूरत होती है और फ़ायदा होता है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, व्हाई इज इट कॉल्ड हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़, व्हाई आर दे कॉल्ड एज साइलेंट किलर्स? या सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार मैं जैसे इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ वोखाड हॉस्पिटल में। सो जैसे मेरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में बहुत यंग पेशेंट्स भी आते हैं, इनफैक्ट आज भी आया था जिसको ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है और स्ट्रोक हुआ है, एंड ही नेवर न्यू कि उसको हाई बीपी है। और नहीं हो कारण है कि उन्होंने कभी बीपी चेक ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि बीपी की बीमारी उनको लग ही नहीं सकती। सो ये एक मान्यता है कि मुझे बीपी नहीं हो सकता है, ये गलत है। हर किसी को रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली अपने फैमिली डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। जब यही चीज़ अनकंट्रोल रहती है तो उसमें स्ट्रोक जैसी बीमारी जो इंसान को ऑलमोस्ट बेड रिडन कर सकती है, हार्ट अटैक विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड लाइफ एंडिंग डिजीज़ ऑल्सो, एंड बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो मॉर्बिडिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पैरों में गैंग्रीन हो जाता है और एम्पुटेशन काटने पड़ते हैं पैर, सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये सारी बीमारियां ना जब उस स्टेज पे पहुंचती है, तब रेट्रोस्पेक्शन में चेकिंग होती है और पता चलता है कि इनको तो बहुत टाइम से अनकंट्रोल शुगर था, अनकंट्रोल बीपी था, जो एड्रेस नहीं किया गया है। सो डॉक्टर, आपने अभी बात की जब पेशेंट की, तो यू मेंशन्ड अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या फ़र्क होता है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर? हाउ डू यू डिफाइन इट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट अवर बॉडीज? डज इट इम्पैक्ट अस डिफरेंटली? क्या फ़र्क है दोनों में? So talking about high blood pressure, definitely high blood pressure can cause damage to all the organs right from the top till the bottom of our body. So जैसे बीपी ज़्यादा होता है तो आपकी आँखों के आर्टरीज डैमेज हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, इट कैन कॉज हार्ट अटैक, it can cause brain attack which is called a stroke or paralysis ka attack. So all this usually happens when your blood pressure is above a normal limit.
एंड नॉर्मल लिमिट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ मोर देन 140, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर का बीपी जैसे बोलते हैं नॉर्मली लोग, एंड द डायस्टोलिक जो कि नीचे का बीपी बोलते हैं व्हेन इट इज़ मोर देन 90 mm ऑफ मर्क्यूरी. सो दैट इज़ हाई बीपी, एंड हाई बीपी इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी लीदल, क्योंकि वो लॉन्ग स्टैंडिंग हाई बीपी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है. लो बीपी के बारे में जैसे आपने कहा कि लो बीपी के बहुत सारे कारण होते हैं. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, डिपेंडिंग ऑन योर हार्मोन्स, ये आपके बॉडी की एक्टिविटीज़ पे, आपके हीमोग्लोबिन लेवल पे, आपका वाटर इनटेक, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. और अगर डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर लो हीमोग्लोबिन की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो उसकी वजह से आपके सारे ऑर्गन्स ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाते हैं. जैसे कि आपको ब्रेन फॉगिंग होने लगेगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा, मेमोरी अच्छी नहीं रहती है. तो ये सब भी लो ब्लड प्रेशर से हो सकता है. एनर्जी लेवल्स लो होते हैं काम करने के लिए, तो वो लो ब्लड प्रेशर से हो सकता है. सो आइदर वेज हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, बट लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करते हैं. तो इन द सेम लाइन, कहीं पे भी आप जब भी इनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, तो हमेशा एक डॉक्टर का स्टैंडर्ड एडवाइस होता है, आई डोंट नो वेदर ये राइट है कि रॉन्ग है, कि प्लीज़ रिड्यूस योर वेट. Is hypertension or diabetes directly proportional to the weight of the person, or does it matter? I think that's a very valid question, and it's very valid because right now अगर इंडिया में maximum लोग above BMI range है. Maximum people, even those people who are in the age group of 8 to 16 years are also declared as obese according to our classification. So definitely मोटापा एक नया pandemic समझ लीजिए, जो हमारी sedentary lifestyle, हमारी eating habits की वजह से है. एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, फैटी लीवर डिजीज़ हो, फीमेल्स में जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ये बहुत सारी डिजीज़ है जिनका ओरिजिन ओबेसिटी से डेफिनेटली है. तो since I said that many people in India are not aware about their conditions, what are those early signs a person should observe about and remain alert and try and take a medical help in terms of deciphering those symptoms, if at all he has not encountered diabetes or hypertension? Are there any early signals? Yeah, definitely body has those early signals and it definitely gives you clues. So first मैं डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी. डायबिटीज़ में इंक्रीज थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना एक साइन है. ड्राइनेस ऑफ माउथ जिसकी वजह से इंक्रीज थर्स्ट होता है, जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स में होता देखा जाता है. दूसरा सिम्टम है पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, to feel hungry most of the times even after having an adequate meal. And unexplained weight loss, यानी ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, but actually when you're having high blood sugar for longer period of time, it causes loss of muscles of your body and you can have unexplained weight loss. So ये सारे symptoms ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ में होते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ों में भी होते हैं, अलग बीमारियों में भी होते हैं, बट ये डायबिटीज़ का भी क्लू है. सो यू शुड डेफिनेटली इफ़ यू हैव दिस सिम्टम्स जैसे कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिनेशन होना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होना, ऐसे सिम्टम्स है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए, इन एडिशन टू टेकिंग अ हेल्थ एडवाइस फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड ही मे आस्क यू कपल ऑफ अदर टेस्ट ऑल्सो. तो वो कर लेना चाहिए. और हाइपरटेंशन के बारे में अगर मुझे बताना है तो हेडेक, डिजीनेस, स्पिनिंग स्पेल्स या फेंटिंग जैसे स्पेल्स होना, तो ये सब भी अर्ली साइंस है. जब किसी को ये सिम्टम्स आते हैं ना, उनको अपना बीपी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए. बट एटलीस्ट वी हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल कि मेरा डायबिटीज़ चला गया, मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो गया, मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने फूड हैबिट्स कंट्रोल कर ली, एंड नाउ आई एम फिट एंड फाइन. तो are these two conditions reversible? Is any even one condition reversible? So if you ask me reversible, I would say that there are many causes for diabetes and blood pressure, out of which obesity is very important cause, stress is very important cause. अगर आप अपने weight को BMI की रेंज में ला सकते हैं और वही वेट को सस्टेन कर सकते हैं, तो आप डायबिटीज़ को रेमिट कर सकते हैं. यू मे नॉट रिवर्स इट बिकॉज इट मे कम बैक मोमेंट आप अपना डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस वापस पुराने वाले लेके आ सकते हैं. सो यू कैन रेमिट डायबिटीज़ अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं और उसको सस्टेन करते हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू सस्टेन इट. एंड टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेशर ऑल्सो, येस, ऐसे स्टडीज़ है जो कहते हैं कि आप अपना 5% ऑफ बॉडी वेट अगर लूज़ करते हैं तो हाई बीपी एज वेल एज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कंट्रोल में आ सकते हैं.
बट क्या है ना, लोग रिवर्स ज़रूर कर लेते हैं, ये रिवर्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड, लोग इसको चेंज ज़रूर कर देते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते. ओनली 5 to 10% ऑफ हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखे जो सस्टेन कर पाते हैं. अगर ये सस्टेन करते हैं तो यू कैन कीप इट इन रेमिशन फॉर डिकेड्स टुगेदर एंड इट वुड बी ग्रेट. And for anybody, suppose he has not observed these things, या उसको नहीं पता चला, and he has met this condition of diabetes or hypertension, and just to make sure, and I'm asking this question just to make sure that people remain alert about this, what are the life complications or things that happen in life post somebody who has encountered both these things? उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी डे टू डे लाइफ में क्या रातों रात वो चलना फिरना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, क्या होता है उनकी लाइफ में? सो बेसिकली आप, आई अंडरस्टैंड कि आप पूछना चाहते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज है अनकंट्रोल्ड बीपी के और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के, Yes, राइट? that's a question. सो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, देर आर एग्जाम्पल्स आई कैन टेल यू, जो आ जाते हैं, हम उनको बताते हैं एंड देन दे जस्ट डिसअपियर एंड आफ्टर थ्रू 2 to 3 years और मे बी 5 years दे कम बैक टू अस क्योंकि उनको एम्पुटेशन करवाना है पैर का. सो येस, लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आपकी आईज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकता है. उसके अलावा ऑब्वियसली हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक की जैसी बीमारियां हो सकती है, जो कि डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है. उसके और एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है न्यूरोपैथी, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स को इतना ज़्यादा टिंगलिंग नमनेस शुरू हो जाता है कि इवेंचुअली दे कैन नॉट रिकग्नाइज कि उनकी चप्पल उनके पैर से सरक रही है. दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द स्लिपेज ऑफ देयर ओन फुटवेयर. It goes unidentified because the nerves have been damaged to that level. So diabetes, if not taken care of at right time, can give you real tough time in future. And blood pressure, there are life-threatening complications like heart attack, heart failure, which can occur because of high BP. और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट का तो होता ही है, बट ब्रेन के रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हेमरेजेस, एंड मेनी टाइम्स दिस हेमरेजेस कैन मेक अ पर्सन बेड रिडन, यानी कि बेड बाउंड फॉर लाइफ. सो येस, देर आर बिग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न हम और आप बैठ के ये अवेयरनेस आज क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि हम इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज अपने किसी भी कस्टमर, किसी भी नियर एंड डियर वंस में ना देखें. श्योर श्योर. एक और इसके बारे में कॉमन स्टोरी है कि एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया तो इट इज़ देन इन योर फैमिली लाइन. तो इज़ इट ट्रू कि अगर किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ हो गया तो उसके ऑफ शूट को, उसके ऑफ स्प्रिंग को भी वो डायबिटीज़ होना ही होना है? इज़ दिस अ रियलिटी? या सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे हम बहुत सारे यंग पेशेंट्स को देखते हैं जिनको डायबिटीज़ है, और वो लोग भी मुझे ये सवाल करते हैं. उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जिनकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, और एक होते हैं जिनकी फैमिली में सबको डायबिटीज़ है, लाइक सिबलिंग्स को है, पेरेंट्स को है. सो आई थिंक दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरल डिजीज़ है. उसमें फैमिली इनहेरिटेंस एक पार्ट ज़रूर प्ले करता है, बट 100% नहीं. सो अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी रखें तो इनहेरिटेड डायबिटीज़ जो रहता है, जेनेटिक डायबिटीज़, उसको आप मात दे सकते हो विथ अ वेरी गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल. बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको चेक नहीं करना है, आपको रेगुलर चेकअप्स करते रहना है. बट टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें कुछ टाइप्स है विच इज़ जेनेटिक म्यूटेशन एंड इट रन्स इन फैमिलीज. तो उसमें तो आपको अर्ली चेकअप एंड अर्ली चांसेस है डिजीज़ होने के. टाइप 2 डायबिटीज़ में देर आर मल्टीफैक्टोरियल थिंग्स विच गो अराउंड एंड दैट इज़ वाई इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को है तो बच्चे को आएंगे ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट रन्स इन द फैमिली. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. एंड इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस एज वेल एज स्टडीज़ भी ये कहती है कि अगर दोनों पेरेंट्स को है तो उनके बच्चे को अगर सेम लेवल ऑफ BMI रखते हैं बच्चे भी, तो उनको 10 years अर्ली आते हैं अपने पेरेंट्स से. लाइक पेरेंट्स को डायग्नोज हो 45 पे तो बच्चे को 35 पे आने के चांसेस है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच वैलिड इन द डेटा विच वी हैव सीन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. Sure, sure. This brings us to an end of this show called Health Talks, a doctor-driven podcast brought to you by HDFC Ergo General Insurance Company. I would also want to take this moment to thank Dr. Hani Savla for sparing her time, for
taking the questions, answering them patiently, answering them in a way and manner that everybody of us could understand diabetes and hypertension minus the medical jargons. We at HDFC Ergo believe that everybody should be aware about it, his or her health should remain sufficiently protected, and products of HDFC Ergo of health insurance, they give you cover which keeps you amply covered in terms of hospitalization if at all it happens. And for people who have more questions about hypertension, diabetes or any other health subject, please DM us at the rate HDFC Ergo GI, and we'll be more than happy to revert back to you. Thank you so much, and stay healthy, stay informed, take care. Thank you.